Shri Ghulam Nabi Azad, Shri N. Chandrababu Naidu, Shri Siddaramaiah. We can also see the Chief Minister of Kerala, Shri Oommen Chandy, and the Governor of Kerala, Justice P. Sathasivam. The people here who have been assembled since morning, most of them are having tears in their eyes now, because the moment is arriving soon when the mortal remains of the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, will be lowered into the womb of Mother Earth, ashes to ashes, dust to dust. That is but human life. But the legacy of Dr. APJ Abdul Kalam will always remain with us. And Jainendra, we now can see that slowly the line of the dignitaries are reaching the podium where the body of the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, lies in state. The cabinet ministers of Tamil Nadu government are paying their floral tributes one by one, and they are also doing their circumambulatory round of the podium, followed by a dignitary of the government of Tamil Nadu who also paid his floral tributes. The Army Chief, General Dalbir Singh Suhag, paying his final salute to the former commander, the Supreme Commander of the Armed Forces, smartly saluting the podium and taking the circumambulatory motion round the podium. एक एक करके विभिन्न दलों के नेता भी यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन अभी इस समय वायुसेना प्रमुख अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जुलाई का महीना था सन 2002 में जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। आज उन्हीं पूर्व राष्ट्रपति को अंतिम विदाई देते हुए इस समय उनके पार्थिव शरीर के पास श्री शाहनवाज हुसैन, साथ ही श्री गुलाम नबी आजाद और उनके पीछे श्री एन. चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। सन 2007 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद से पदभार छोड़ा था, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरह से वो समाज और देश के निर्माण में रत रहे, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। ये हमेशा ख्वाहिश होती थी औपचारिकताओं में नहीं, बल्कि सच्चे मायने में कर्मयोगी बनकर ही हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, और वे स्वयं एक कर्मयोगी थे। ये बात हम सब जानते और महसूस करते हैं। शाहनवाज जी और श्री गुलाम नबी आजाद ने दुआ मांगी अपने दोनों हाथ फैलाकर श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर के समक्ष, और उसके बाद श्री एन. चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नेतागण। राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये सचमुच सही मायने में रत्न थे भारत के। भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर कलाम तीसरे राष्ट्रपति थे ऐसे जिन्हें भारत रत्न मिला था। पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। Yes, Jainendra, and one thing that is really very touching here at this moment, we see the nonagenarian former Chief Minister of Kerala, Shri V.S. Achyutanandan, who has also come here to pay his last respects to the former President of India, Dr. APJ Kalam. This speaks about the friendliness of the man, his reach to each and every people across the spectrum. You could have had political differences with Dr. Kalam, but he was close to politicians and people of every hue. We now see the nonagenarian CPM leader, Shri V.S. Achyutanandan, paying his obeisance, and is followed by Congress Vice President Shri Rahul Gandhi, and is also paying his last tributes
to the departed President of India. In the line of dignitaries, Jainendra, we can also see the Ambassador of Nepal, Shri Deep Kumar Upadhyay, and the High Commissioner of Bhutan is also here in the traditional dress of the Bhutanese. Slowly, the crowd of dignitaries is going towards the podium. People who have gathered here since morning, they have waited so long for this sight today, this final sight of the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, who is no more with us, of course, but his memory, his legacy, his thoughts, his teachings, his values will always be cherished, will always be remembered, and will always be told for generations to come. डॉक्टर कलाम की ये ख्वाहिश थी, उनकी अभिलाषा थी कि वे इस देश में, इस देश की मिट्टी में, इस देश के युवाओं के दिलों में प्रतीकों के रूप में जिंदा ना रहें, बल्कि वे हमारे जीवन में, हमारे विचारों में, हमारे कर्म में उसका हिस्सा बनकर वो रहें हमेशा। ये वो चाहते थे, ये उनकी अभिलाषा थी, और इसीलिए स्वयं भी एक कर्मयोगी के रूप में अपने अंतिम सांस तक वे काम करते, प्रेरणा देते, गाइड करते, अपने उन्होंने अंतिम सांस ली थी। 27 जुलाई 2015 को श्रोताओं आपको याद ही होगा, भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग में वे अपना व्याख्यान देने गए थे और विषय था रहने योग्य एक गृह, धरती। इस धरती को रहने योग्य बनाने के लिए और इस धरती को रहने योग्य बनने के लिए क्या क्या उसके आयाम हो सकते हैं, क्या क्या उसकी गहराई हो सकती है। एक दार्शनिक के तौर पर उनकी सोच बहुत विस्तृत थी, लेकिन वही व्याख्यान देते हुए लगभग शाम 6:30 बजे का ही समय था जब वे अचानक मूर्छित हुए, गिर पड़े। वेटरनरी अस्पताल में शिलांग में उन्हें ले जाया गया और डॉक्टरों ने वहां बताया एक आघात जो देश के हर वासी को लगा वो ये सुनकर कि हृदयाघात यानी हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हो गया था। इस साल अक्टूबर के महीने में वे 84 साल के होते। शिलांग से डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहले गुवाहाटी लेकर आया गया और वहां से 28 जुलाई को उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली में और उसके बाद उनके निवास स्थान पर, पूर्व निवास स्थान पर जहां वे रहते थे, वहां उनके शरीर को रखा गया, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने आकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बहुत बड़ी संख्या युवाओं और बच्चों की भी थी। कल यहाँ बातचीत के दौरान यह आभास मिला और ऐसे कुछ बच्चों से बातचीत करने का मौका मिला जो जिन्होंने जब ये सुना कि पूर्व राष्ट्रपति उनके बहुत ही प्रिय प्रेरक व्यक्तित्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहे, उस दिन उन कुछ युवाओं ने मिलकर एक संकल्प लिया। और ये कुछ युवा वो हैं जिन्हें हम जानते हैं, ऐसे हजारों लाखों युवा होंगे श्रोताओं जिन्होंने शायद अपने अपने स्थान पर यह संकल्प लिया होगा। उन युवाओं का यह संकल्प था कि वे अपने जीवन को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणा से उन बच्चों की पढ़ाई के लिए समर्पित करेंगे जिन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये कहा करते थे कि उन्हें अपने पिता से और अपने परिवार से जो 102 सबसे मजबूत हथियार मिले, साधन मिले, प्रेरणा मिली, वो थी शिक्षा की और दूसरी मेहनत करने की, संकल्प की। और उनकी ये इच्छा और उनकी अभिव्यक्ति थी कि शिक्षित होना सबसे आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा से ही हम अपने जीवन की तमाम मुसीबतों का, तमाम कठिनाइयों का मुकाबला कर सकते हैं, अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं और देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए शिक्षित करने के उद्देश्य से एक शिक्षक के रूप में भी वे लगातार तमाम अलग अलग विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में जाते रहे। उन्हें सुनने के लिए युवा हों या बच्चे घंटों इंतजार कर सकते थे। और जैसे कि हमने शुरू में जिक्र किया था, उस शख्स का, उस सैनिक का जो शिलांग की इनकी अपनी यात्रा के दौरान आगे की जिप्सी में सुरक्षा के लिए लगातार वो रास्ते पर खड़ा रहा राइफल लेकर, उनसे जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था
जब ये शब्द बोले कि आप थक गए होंगे इतनी देर खड़े खड़े, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, तब उस सैनिक ने बड़े गर्व के साथ सीना तान कर ये कहा था कि सर, आप जैसे व्यक्ति के लिए तो मैं घंटों खड़ा रह सकता हूँ, उसमें चाहे वो 6 घंटे हो या 8 घंटे हो या 12 घंटे, ये मैटर नहीं करता, इस बात का कोई मायने नहीं है। ये प्रेरणा उनके व्यक्तित्व की अपने आप में बहुत कमाल की है, जो हमारे अंदर ऊर्जा भरती है, ताकत भरती है, संकल्प से हमें भर देती है। एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति भवन में जिस सरलता के साथ, जिस सहृदयता के साथ और जितने सहज भाव से उन्होंने अपने जीवन को जिया है, वो दूसरों के लिए प्रेरणा रही है। पीपल्स प्रेसिडेंट उन्हें वैसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान आम से आम आदमी के लिए उनका राष्ट्रपति भवन आवास उनका खुला होता था और समय लेकर कोई भी उनसे मिल सकता था, और वे बहुत सहृदय भाव से, बहुत स्नेह के भाव से सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे। एक उनके अंदर की ये उत्कंठा अपने आप में बहुत कमाल की है कि वे हमेशा इस उद्देश्य से बच्चों से, बड़ों से, युवाओं से या किसी से भी बात करते थे, यूं लगता था जैसे वे खुद कुछ जानना और सीखना चाहते हैं। सीखने की ललक उनकी आखिरी सांस तक रही, और वो सीखकर इतना कुछ उन्होंने दिया है इस देश को और इस समाज को, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। Sri Vaikul V. Gopalasamy, the political leader from Tamil Nadu, paying his obeisance and respects to the departed former President of India, Shri APJ Abdul Kalam. As the floral tributes by the dignitaries come to an end, the armed forces personnel are waiting to proceed with the final funeral rites of the departed president, and we now see that the personnel are slowly making their way towards the podium where the body of the former Supreme Commander of the Armed Forces lies in state. The General Officer commanding is coming here, and we see the soldier coming here saluting the cortege, and now the wreath that was placed by the Prime Minister before the cortege of the former President is being ceremonially kept at a different place in the podium.